अली साहब, अली असगर साहब, मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि अली असगर साहब आप यहाँ मंच पर आ जाइए और आपका जो कुछ भी इजहार ख्याल या जो कुछ भी आप यहाँ से मैसेज पैगाम देना चाहते हैं वो देंगे। फिर इसके बाद हमारे जो 10 उम्मीदवारान बचे हुए हैं इंशाअल्लाह हम उन लोगों को समाप्त करेंगे। अली जनाब, अली असगर सर, फाउंडर डायमंड इंटरनेशनल स्कूल। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. All praise is due to Allah, the most beneficent and the most merciful. We praise the Almighty Allah and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evils of ourselves and the mischief of our deeds. Whomsoever Allah guides cannot be misguided, and whomsoever Allah misguides cannot be guided. Peace and blessings be upon the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, and upon his noble companions. Ameen. So, Alhamdulillah, I'm very pleased and delighted to be a part of this program, and I'm very thankful to Hafiz Muzammil Saab and Mr. Faizan for giving me this opportunity to present my school and my methodology, how we are going to teach. Because in today's scenario, we have seen that modern education is very important. So along with the religious teachings, we have to simultaneously, parallelly carry out the modern education also. So for that reason, so I have started being a professor in mathematics. So I have taught in so many engineering colleges. Being in this dress, I used to wear cap and I used to go classes. Nobody has restricted me. If we have sound knowledge, the Ala Hazrat Sarkar has very well said that अगर आप दुनिया की ज़रूरत बन जाओगे तो दुनिया तुमको फॉलो करेगी। मैं जितने भी मैंने कॉलेजेस में एज ए प्रोफेसर मैंने काम किया, आई नेवर फेस्ड एनी चैलेंज। मैं अगर जुमे की नमाज है तो आई वॉज ग्रांटेड परमिशन, अगर मेरे को वहीं नमाज पढ़ना है, कोई भी असर की या फिर कोई भी जो टाइम मिल रहा है, इट वॉज ग्रांटेड। तो मैंने आरएसएस के कॉलेजेस में भी काम किया, बट नोबडी हैज़ रिस्ट्रिक्टेड मी। जब तक आप दुनिया की ज़रूरत बनोगे तब तक दुनिया जो है आपको फॉलो करेगी, आप पे जो है कंडीशंस नहीं इम्पोज करेगी, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली लास्ट 3 years I have started one school by name Diamond International School. When I started that school, initially I have only 7 children, but I didn't give up. Alhamdulillah, with the help of with the blessings of Allah and with the support of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so my school was proceeded. After 1 year, after the completion of 1 year, I was into second year and I got only 8 admissions. And after that, in this current third year, I got alhamdulillah 70 students. And this year I have started first standard. And recently we have celebrated Miladun Nabi function over there, and our students have participated with full enthusiasm. So now I request my students to come over here. These are the students of class 1, and inshallah they will conduct this Miladun Nabi program in short before all of you. Yes, please remove your shoes and come upstairs. माशाल्लाह, देखिए ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और ये यहाँ पे अलग अलग किरदारों में आ रहे हैं माशाल्लाह। Mustafa, please come here. माशाल्लाह। So this is my first class standard and he is going to conduct the program. Yes, Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. All praises due to Allah, the most beneficent and the most merciful. We praise the Almighty Allah and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evils of ourselves and the mischief of our deeds. Whomsoever Allah guides cannot be misguided, and whomsoever Allah misguides cannot be guided. Peace and blessing be upon the final messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his noble companions. Ameen. Today we have gathered here to celebrate the prize distribution ceremony of Nath competition. Now I call upon my brother Shifan to come here and deliver a speech on Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. I am Mohammad Shifan, a grade 1 student of Diamond International School, Amravati. Eid Miladun Nabi is
a celebration of the Prophet's birthday. It is celebrated on 12th Rabiul Awwal every year by Muslims all over the world. This day is considered as auspicious and is a reminder of the Prophet's teachings, compassion and kindness. Thank you, Jazakallah. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। MashaAllah. Now I call upon my brothers Hussein, Raza and Faizan to come here and do the question and answer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. What is the name of our Prophet? Our Prophet name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is the name of our Prophet father? Our Prophet father name is Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. What is the name of our Prophet mother? Our Prophet mother name is Amina radhiyallahu ta'ala anha. When is the birthday of our Prophet? The birthday of our Prophet is on 12th Rabiul Awwal. Which is the birthplace of our Prophet? The birthplace of our Prophet is Makkah Mukarramah. Where is the resting place of our Prophet? The resting place of our Prophet is Madinah Mukarramah. सुभान अल्लाह। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जय बेटा। So, माशाल्लाह, these are the students of only class 1. देखिए क्लास 1 के बच्चे जब ये आए थे मेरी स्कूल में, सो लास्ट ईयर ओनली दे हैव टेकन एडमिशन। तो जिस वक्त वो आए थे तो उनको जो है खाली अल्फ़ाबेट्स आते थे, उनको जो है ब्लेंडिंग भी नहीं आता था 3 लेटर वर्ड्स का 4 लेटर वर्ड्स का भी। नाउ दे आर एबल टू डिलीवर अ स्पीच अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ऑस्पिशियस, काइंडनेस, ये जो वर्ड्स है इतने डिफिकल्ट वर्ड्स है कि कोई ऐसे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करता है, ठीक है, आफ्टर बीइंग अ ग्रेजुएट ऑल्सो। माशाल्लाह ये स्टूडेंट्स ने जो ये चीज़ भी करते। तो कोई भी चीज़ का एक तरीका होता है, जहाँ पे कम स्टूडेंट्स हो और एक ऑर्गेनाइज वे में अगर एजुकेशन दिया जाए और हर बच्चे को अगर मौका दिया जाए तो इंशाल्लाह हर बच्चा जो है वो कामयाब होता है इंशाल्लाह। अभी स्कूल्स में क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ 70 बच्चे, 60 बच्चे, 50 बच्चे, इतने सारे बच्चे जो है आप लोग 1 लाख रुपए देने के बावजूद भी जो है कुछ पोद्दार इंटरनेशनल इतनी ऐसी बड़ी बड़ी स्कूल्स है जहाँ पे 50, 60, 70 बच्चे और भी जो वहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि 70 स्टूडेंट्स एक क्लास में, आप बिलीव नहीं कर सकते कि सबको जो वहाँ पे एजुकेशन सब पे तवज्जो ही नहीं होती है। तो इसलिए अगर जहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स हो और सही तरीके से अगर तालीम हो तो डेफिनेटली जो है वो हर बच्चा जो है सीखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड इंटरनेशनल स्कूल में हम इसी तरह से जो है एजुकेशन दे रहे बच्चों को। हम जो दीनी एजुकेशन है उसके लिए जो है इंग्लिश जो है मेन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। सो फॉर दैट वी आर फॉलोइंग द वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके ये 5 बुक्स है। अगर अभी भी किसी को अगर रीडिंग नहीं आती है, अगर बच्चा कोई 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में, स्टिल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन दे आर नॉट अनेबल टू रीड अ सेंटेंस। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक जो है केस स्टडी किया था जिसमें उन्होंने 3rd ग्रेड का जो है एग्जाम्स लिया था 7th और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, सरप्राइज टेस्ट। उसमें उन्होंने ये पता लगाया 70 to 80% आर अनेबल टू सॉल्व अ 3rd ग्रेड स्टूडेंट इफ इट इज गिवन टू अ 8th और 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सो अगर आपने बेसिक एजुकेशन बच्चों को अगर बुनियादी लेवल पे अगर सही दिया, बड़े भी कहते थे जितनी बुनियादी अच्छी रहेगी उतनी इमारत जो है मजबूत होगी, तो वही फाउंडेशन यहाँ पे भी है। अगर आप फाउंडेशन अच्छा दोगे बच्चों को, दे डोंट हैव टू गो फॉर ट्यूशन क्लासेस, दे डोंट हैव टू गो फॉर नीट एंड JEE प्रिपरेशन, दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स। ऐसे इंडिपेंडेंट उनको रीडर्स अगर बनाना है तो माशाल्लाह हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए हम ऑक्सफोर्ड की जो फोनिक्स बुक्स है, तो इसमें तरीका बताया गया है कि भाई किस तरह से बच्चों को जो है आप इंग्लिश जल्द से जल्द 5 बुक्स कंप्लीट करने पे माशाल्लाह बच्चा इंग्लिश रीड करने लगता है कोई भी लेवल का। और उसके बाद एट द सेम टाइम वी आर फॉलोइंग अरबिक ऑल्सो, क्योंकि हमको दोनों बैलेंस करके चलना है। सो वी आर फॉलोइंग अवर इस्लामिक स्टडीज़ एज वेल एज एंड दिस वर्ल्डली एजुकेशन ऑल्सो। उसके लिए जो हमने नर्सरी से जो है पहली किताब जो है अल्फ़ाबेट्स की अरबिक की, और दूसरी और तीसरी जो है साउथ अफ्रीका की बुक्स है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर हमारा हम कायदा देखेंगे तो कितने सालों से चल रहा है और उस कायदे में सभी जो है रूल्स है।
इन्होंने इतना अच्छा काम किया माशाल्लाह साउथ अफ्रीका वालों ने कि उनकी सेकंड बुक में उन्होंने ज़ेर, ज़बर, पेश और सुकून, बस इन चारों चीज़ों को हाईलाइट किया है। वो चार चीज़ें अगर बच्चा KG 1 में अगर कर लेता है तो KG 2 में बाकी जो कवायद है वो उसके हो जाती है। फर्स्ट से जो है हम उसको कलाम पाक शुरू कर सकते हैं। अभी ऐसा हुआ कि बच्चा 5 घंटे स्कूल में रहता है, 3 घंटे ट्यूशन में रहता है, 2 घंटे मदरसे में जाता है, मगर उसको जो है कोई हासिल चीज़ होती नहीं है उससे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पूरा एजुकेशन जो है स्कूल में आपको दिया जाए। तो इसलिए इंशाल्लाह हम अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि 9 to 5 करके टाइमिंग रखें। इसमें सभी जो है इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स भी हम ले रहे हैं बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से, और उसके साथ साथ जो अरबिक एजुकेशन को भी हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे। सो फाइनली आई क्लोज माई स्पीच by saying once again thank you to all the management people and especially Hafiz Muzammil Saab and Mr. Faizan for giving this